Pakistan is blessed with many talented professionals, and our guest for today is a man whose passion for sports is only outpaced by his love for the job. And he is currently the Chief Marketing Officer for HBL. Please welcome Naveed Asghar. Welcome to the show, Naveed. Thank you very much. The first question हम शुरू करते हैं कि HBL का बहुत बड़ा contribution है in sports. इसकी inspiration क्या है? Reason क्या है इसकी? In simple words, Wasim, I think it goes back to the brand essence, the brand promise. HBL is all about Jahan Khwaab, Wahan HBL. And we believe that sportsmen are dreamers. Sportsmen want to achieve something big in their lives. ये सारे जितने भी sportsmen होते हैं ना, इनको हमेशा से एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है इनके अंदर कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का. And that's where they want to excel, and that's where we come into play. We would like to enable their dreams, we would like to partner them, and hence you would have seen that most of the contributions that HBL has made over the years is predominantly more in the arena of sports. Sports. I mean, cricket तो चलो big sport है इस मुल्क में, but mountain climbing आ गई, फिर आपकी soccer भी आ गया. So आप सब sports को cover कर रहे हैं. Again, it's not humanly possible or for an organization to be anywhere and everywhere, because then you end up spreading yourself too thin. Nevertheless, the idea here is that you pick up on more dreamers, individuals. जो अभी आपने mountain climbing का भी जिक्र किया, तो जो समीना बेग की भी inspiration हमें आई थी. Unbelievable. कि she's only 24, she has already done 7 summits. She's done 7 summits already, including the Mount Everest. Oh, that's not easy task. That's certainly by no stretch of imagination. It's easy, but given that she has done it, and at the same time, unfortunately, हमारी कौम को, हमारी आवाम को इस चीज़ का पता नहीं था. वो ये कहते हैं कि पहाड़ चढ़ लिया. हाँ जी, ये पहाड़ चढ़ लिया, ये उनको आइडिया नहीं है. So that's where we come in and we say कि यार जो भी ड्रीमर्स हैं, हम उनके शाना बशाना है, हम उनको लेके चलेंगे और उनको उनकी तकमील तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह. थोड़ा सा आप हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको बता सकते हैं कि माउंटेन क्लाइंबिंग कितनी मुश्किल होती है, कितना उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वेदर देखना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, बिकॉज वेदर वहाँ तो किसी टाइम भी ख़राब हो सकता है. Absolutely. These are some of the challenges that are part and parcel of that kind of sport. It's one of the most adventurous, yet one of the most dangerous sports that one can think of. And Samina se, again, I personally have no insights into this sport because I have never done that myself. Nevertheless, when you speak to people like Samina, she tells you उन्होंने मौत को कितनी दफ़ा करीब से देखा है, कितने close encounters हुए हैं उन लोगों के इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि ऐसे में ख़तरात जगह होते हैं. जी बिल्कुल. I just saw this movie Mount Everest and I was so scared. I said I can't do this. So imagine this 24-year-old young girl achieving such a feat. Since you were cut out for something else and you've done great in that field. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL. इसके पीछे philosophy क्या है sports point of view के हिसाब से? As I said earlier as well कि हमारी हमेशा से हत्तुल इम्कान कोशिश ये रही है कि जी कोई भी ड्रीमर हो उसको उभारा जाए, उसके साथ शाना बशाना खड़े हों. उसको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो उसको दी जाए. फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसको कोई और कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए. इफ वी हैव टू हुक देम अप विद द राइट पीपल इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, मेंटरिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है. सो इट डजंट हैव टू बी नेसेसरी ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट. बट अगर हम जैसे लोग उनके साथ नहीं होंगे तो इस मुल्क के टैलेंट को उभरने का मौका फिर उतना नहीं मिलता. और हमारी कोशिश यही है और यही हमारी टैगलाइन, यही हमारा प्लेटफॉर्म रहा है और यही हमारी इवन सोच रही है. What are future plans for supporting and uplifting sports in Pakistan? यहाँ मैं थोड़ा सा जवाब खुल के दूंगा. जी प्लीज. कि हम ये भी समझते हैं कि हर शोबे में अपने बोर्ड्स हैं, अपने इदारे हैं, चाहे वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हो या कोई भी हो, तो उन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है. आई होप सो. हम उनके साथ पार्टनर ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिर्फ अपने नातवान कंधों पे नहीं लेना चाहते. हमारी कोशिश ये होती है कि जी हम उन लोगों के साथ पार्टनर करें और while we are doing a lot of things on the grassroots level, लेकिन इसके साथ साथ हमारी
कोशिश से स्पोर्ट्स को उभारना नहीं है, हमारी कोशिश है उन ड्रीमर्स को ढूंढना, चाहे वो पढ़ाई में, चाहे वो एजुकेशन में किसी है, भी फील्ड में है, या एब्सोल्युटली। एंड इट सो हैपेंस कि अभी हमारी मोस्टली एग्जांपल स्पोर्ट्स के आपने स्ट्रीट फुटबॉल को भी बड़ा सपोर्ट किया और हमारे बच्चों ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है 2 दफ़ा। थोड़ा उसके पीछे बताएंगे क्या माइंडसेट था आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और कैसे उन लड़कों ने रिस्पॉन्स किया है? देखिए, गालिबन काफ़ी लोगों को इस बात का पता नहीं है, लेकिन देयर मोर देन 1.5 मिलियन चिल्ड्रन हु लिव ऑन स्ट्रीट्स इन पाकिस्तान। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। 1.5 मिलियन जो ऑफिशियल है, जो ऑफिशियल नंबर कोट किया जाता है, डिफरेंट एस्टिमेट्स डिफरेंट नंबर्स देते हैं। नेवरदलेस द आइडिया वाज कि यार उन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को के सर पे कोई उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके भी वो भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, वो भी ड्रीमर्स हैं, वो भी ख्वाब देखते हैं, हर इंसान ख्वाब देखता है जी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा काम कर रही थी कि उनको ले जाके स्पोर्ट्स के ज़रिए दोबारा मेन स्ट्रीम इकोनॉमी और बिजनेस में उनको मर्ज कर रहे थे। ओके, सो वी जॉइंड हैंड्स विद आज़ाद फाउंडेशन एंड वी became the sole sponsors of street children, and then we nurtured and groomed them. ओके, We gave them many opportunities to brush up their talent, and they were given that some of them were coming from soccer playing areas of Karachi. So they already were pretty, I would say, good at what they used to do. Yeah. Over and above. बच्चों के लिए जिंदगी में स्पोर्ट्स बहुत ही अहमियत, वेरी क्रूशियल। तो हमने उस टीम को स्पॉन्सर किया। They not only made themselves proud, but the entire country proud. Absolutely. Because they went and participated in 2013 World Cup, Street Children World Cup in Rio, जी, and won the bronze medal for Pakistan. They won against India, 13-0. 13-0. That in itself was big. That's right. And when they came back to the country, they got an overwhelming response. बहुत उनकी लोगों ने सही, अभी वो बल्कि 2015 में हमने उनके दोबारा नॉर्वे गए, नॉर्वे कप खेलने, and even there they did pretty well. They won the bronze medal yet again. और अब हमारी कोशिश है, हम उनके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको 2018 के वर्ल्ड कप के लिए. That's going to be in Russia. Unbelievable. And lastly, मुझे याद है मैं जब आई हैव जॉइंड पीआईए, जावेद भाई कप्तान थे, बहुत अजीम प्लेयर एचपीएल से खेले हैं और बड़ी हमारी क्लोज मैचेस हुए हैं. सो इट इज ऑलवेज ऐसा बैंक था जिसने स्पोर्ट्स को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया और सपोर्ट भी किया है. थैंक यू वेरी मच नवीद, एंड बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का. आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. और आज कुछ ऐसे ही राइजिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान से हम मिलेंगे जो गलियों में खेलते खेलते ब्राजील तक जा पहुंचे और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया. और आज हमारे साथ हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के 2 राइजिंग स्टार्स, अवैस और मेहर अली. No dreams are bigger than your determination, and this team has proved just that. Out of the streets of Pakistan, these players made a mark in international football by participating and winning matches in the Street Children's Football World Cup. With commendable performances and vision, these children are the future of Pakistan. We would like to welcome 2 very talented youngsters from the same team who made us proud across the world. Please welcome Uwais and Meher. अवैस, मेहर, खुशामदीद इस शो पर. आप हमारे राइजिंग स्टार्स हैं, आपने पाकिस्तान का नाम इतना बुलंद किया है. दोनों से क्वेश्चन है, कराची की गलियों से ब्राज़ील तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा. जैसे मुझे लगता है कि एक मेरे लिए चमत्कार हो गया. जैसे मैं गलियों में खेलता था और बड़ी बात मज़े की ये है कि तो मैं फिशरमैन था. अच्छा. और फिशिंग का मैं काम करता था और 3 साल मैंने फिशिंग का काम किया और मुझे फ़ुटबॉल का बहुत बेहद शौक़ था बचपन से ही. और मेरे वालिदा बोलते थे आप ये छोड़ो, आप फिशिंग पे जाओ. और मैं छोटा था, स्कूल पढ़ता था, तो स्कूल भी मैंने इसीलिए फ़ुटबॉल के लिए छोड़ा. अच्छा. और उसके बाद मैं फ़िशिंग पे गया. ओके. तो फिशिंग का काम किया.
तो वहाँ भी फिशिंग पे कभी जाता था कभी नहीं, क्योंकि एक वीक्स के लिए फिशिंग पे जाते थे तो मेरा मैच एक हफ्ता जी समंदर में। जी अच्छा। तो हम लोगों को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता था, तो मैं ऐसे एक हफ्ते की छुट्टी कर लेता था, ये घर वालों से भाग के कहीं दूर चला जाता था, तो दूसरे ग्राउंड के मुझे किट्स वगैरह लेके देते थे। तो माशाल्लाह मुझे बहुत शौक़ था, और जब मैं ब्राज़ील गया आया तो माशाल्लाह घर वालों ने और मोहल्ले में बहुत अच्छी रवायत पेश की। अवैस, आप बताएं आपका सफ़र कैसा रहा? मैं अगर अपने बारे में कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि मैं आज से तकरीबन 8 साल पहले एक स्ट्रीट चिल्ड्रन ही था, और तकरीबन मैंने 4 साल अपने स्ट्रीट पर गुजारे। तकरीबन सारी तकलीफ़ें मैंने वहाँ की देखी हैं, और जो बच्चों के साथ वाक़यात पेश होते हैं, जैसे मिसाल खाने के ऊपर, जो भी मेडिसिन्स के लिए उनके हेल्थ प्रोटेक्शन के ऊपर, उसके अलावा उनके साथ जो भी अब्यूज़मेंट्स होती हैं, ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़रूरी मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त नफ्स है। अगर हम किसी की इज़्ज़त को ठेस पहुँचाते हैं तो हर किसी को दुख होता है। तो मेरे लिए यही मैं कहना चाहूँगा, जैसे ब्राज़ील की बात आपने इसमें डाली है, वहाँ पर मैंने ये चीज़ नोट करी कि वो लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट इतनी दे रहे थे कि हमारे साथ ही बैठना, ज़मीन पे बैठे हैं, जैसे ही बैठे हैं उस तरीके से हमें इज़्ज़त देना। और यही चीज़ मैंने HBL के उसमें भी देखी कि HBL वाले बिल्कुल हमारे साथ मिलजुल के हमसे गले लगना, बातचीत करना, बिल्कुल एक प्रॉपर हमें समझना, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो फुटबॉल का शौक़ शुरू से ही था? जी और क्रिकेट का मुल्क है ये, फुटबॉल कैसे? हमारे मोहल्ले में जो है ना ज़्यादा तो क्रिकेट खेली जाती थी। अच्छा। लेकिन मेरी थोड़ी क्रिकेट में मैं लूज़ था, तो रुझान नहीं था जी इतना नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे फ़ुटबॉल के बारे में कुछ जानकारी है, मोहल्ले के क्लब्स वगैरह में खेल लें, फिर आगे चांस अल्लाह ताला देगा, और HBL, आज़ाद फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन वही चांस दिला दें। तो ऐसे फिर मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट किया, तकरीबन 8 साल का था। 8 साल के थे? 8 साल का, छोटा था तो अकेडमी में मैं खेल रहा था। अच्छा। प्रॉपर कोचिंग हुई आप दोनों की? अभी जो हम स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप में गए, हाँ। उस टाइम पे हमारा कैंप लगा था, तो कोच राशिद जो थे उन्होंने हमें, मकसद आप ये समझ सकते हैं कि हमें कुछ खास पता नहीं था कि थ्रो कैसे करना है, और बीच में विसिल, हर विसिल के एक अलग मायने, बस ये पता था कि वो फुटबॉल है, इसको लात मारना और अच्छा। लेकिन उस कोच ने हमें इतना तब्दील किया कि हम इस मुकाम तक पहुँचे। और नहीं, आप लोग पता है मेरे लिए तो इंस्पिरेशन हो ही, आप पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन हो, कि आप जैसे लड़के स्ट्रीट जैसे आपने कहा आप स्ट्रीट पे रहते थे और आप फिशिंग करते थे, इसका मतलब है कि आप में टैलेंट है और आप अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर आगे आए हो। और पहला मैच इंडिया के खिलाफ जी 13-0, उसकी जरा स्टोरी बताओ यार, वो तो मजेदार स्टोरी है? पहले तो ये बात थी कि इंडिया 2010 की दिफाई चैंपियन थी। अच्छा। और उसमें पहला फर्स्ट मैच हमारा लीग का था इंडिया के साथ, तो हमने सोचा कि प्रेशर तो होगा जी, बहुत प्रेशर। एक ज़रूरी प्रेशर ये था कि उससे जिस दिन हमारा मैच था उससे एक दिन पहले क्रिकेट मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जो वो हारा था पाकिस्तान। अच्छा। तो ये तो ज्यादा एक प्रेशर पड़ गया होगा यार, ये तो अब तो जीतना है। तो नींद आई रात को मैच से पहले? नहीं, काफी बहुत देर से जज्बात था। ग्राउंड में जब उतरे तो हमने बोला खेल के दिखाएंगे। तो पहले प्लेयर बहुत घबरा रहे थे। जब नेशनल तराना लगा अपना पाकिस्तान का, तो प्लेयरों के जो जिस्म के बाद जज्बात वगैरह वो उठ गए ऐसे। हाँ। तो उनको फर्स्ट हाफ में उनको 8 गोल रख दिए। वाह, 8 गोल फर्स्ट हाफ में, पहले हाफ में। जब आप लोग ने परफॉर्मेंस अच्छी की, ब्रॉन्ज जीते ब्राजील में, जब वापस आए पाकिस्तान तो क्या यकीन था कि घर वाले और सारा पाकिस्तान आपका वेट कर रहा होगा या इतनी खुशियां होगी? पता था कि एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे? ब्राजील में थे तो पता नहीं था। जब अच्छा। वही में आ गए तो फिर कॉल की तो उन लोगों ने बोला यहाँ कराची एयरपोर्ट पे हल्ला उल्ला मचा हुआ है और इतना क्राउड हमने जिंदगी भर पाकिस्तान में इतना क्राउड नहीं देखा। जब हम पहली बार हमने डोर खोला हाँ। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए, वैसे ही लोग हमें बोलते आ रहे थे कि आपने क्या किया है कि बाहर इतनी आवाम। जब हमने डोर खोला तो यकीन करें कि हमारे बाहर एक कदम रखने की जगह नहीं। तो वापस डोर बंद किया गया कि किस तरीके से हम वहाँ से जाएंगे, और ये सारी चीज़ें थी। तो हम दूसरे डोर से फिर निकले थे, और वो भी बहुत मुश्किलात से। तो घर वालों ने जब कहते थे फिशिंग करो, फुटबॉल नहीं खेलो, फिर जब जीत आए ब्राजील से वापस, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका सर वो तो खुशी से बेचारे ऐसे जो खुशी के आंसू थे ना वो गिर पड़े, खासतौर पे मेरी अम्मी के, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे मना करती थी फुटबॉल से, बोला नहीं खेलो ये वो।
तो हमारा क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे वक्त देखे थे जिनमें मैं आपको क्या बोलूं, तो माशाल्लाह से तो अम्मी ने इसी बात से बोला कि मतलब आपने बेटा जो कदम उठाया था उसको आपने आगे बढ़ाया और अभी बढ़ाना, अभी मैं आपको साथ दूंगी। और माशाल्लाह मोहल्ले में, गलियों में, सारों। तो अब तो अम्मी नहीं कहती कि आप फुटबॉल नहीं खेलो? अम्मी अभी बोलती है खेलो, अभी मैं आपको सपोर्ट करूंगी। फ्यूचर के क्या प्लान है, क्या ख्वाब है आप लोगों के फुटबॉल में? बहर आप पहले। फ्यूचर का यही कि हमारी यही कोशिश है कि हम लोग और मेहनत करें आगे मज़ीद और अच्छे से प्लेयर बने, अच्छे बड़े क्लब में खेलें, जैसे बार्सिलोना हो गया, आर्सेनल हो गया। मेरा तो ख्वाब ये है कि मैं आर्सेनल में खेलूं। और ये सिर्फ ये फुटबॉल का हमारा फ्यूचर का वो नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे हैं, हम उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। जैसे अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमें मौका मिला है तो दूसरे बच्चों को भी हम मौका दे सकें, तो इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर में ये करेंगे कि दूसरे बच्चों को मौका दिलाएंगे इंशाल्लाह। और आपका क्या प्लान है अवैस? मैं असल में वैसे भी इस टीम के अंदर ज़्यादा स्पोक पर्सन के तौर पे मैं सामने होता हूँ, और तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रंस को, मैं उनके दुख और सारी परेशानियों को समझता हूँ, तो उनके लिए कुछ काम करना, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ करना कि उनको आगे ज़िंदगी में मुश्किलात ना आए। हमने ब्राज़ील से आने के बाद आई एम समबडी कैंपेन की थी, उसका स्लोगो यही था कि आई एम समबडी, और उसमें पूरे पाकिस्तान में टूर करा। कराची से लेके हम आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर हम गए और वहाँ तक, और उसमें हमने बीच में बहुत से मैचेस खेले ताकि हम अपने कैटेगरी के बच्चे को वहाँ से पिकअप करें। जो अच्छा है उसको पिक कर सकें। एक बच्चे को हमने वजीराबाद से पिक किया था। अच्छा। तो लास्ट ईयर हम लोग गए थे नॉर्वे कप खेलने। उसमें पिछले साल हम लोग जो है उसमें 2014 8 पोजीशंस पे आए थे। अच्छा जी, क्वार्टर फाइनल में हमें टीमें होती हैं ऐसे एक टूर्नामेंट में? पिछले साल तकरीबन 196 ऐसे कुछ टीम थी, लेकिन इस साल वो बढ़ गई, 216 टीमें हो गई। 216 टीमों में से हम लोग 3rd प्लेस पर आए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है आप लोगों की, कहाँ कराची से कहाँ ब्राज़ील तक, ये स्टोरी जारी रहेगी। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए अब आते हैं, मैं एक जुमला बोलूंगा और आपने आगे से आंसर देना है, ठीक है? मैं आपसे शुरू करता हूँ। नॉर्वे में ये है कि माशाल्लाह से अहमद ने बहुत अच्छा मतलब दिखाया कि जैसे नील के सामने इसने गोल किया था। हाँ। जो कोने से आके पूरे प्लेयरों को बीट किया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। तो ये है कि उसने ऐसे ही समझो कि हमें ब्रॉन्ज मेडल उसने हमें दिलाए थे। उसने दिलाया था। वाह, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। अब आपसे पूछता हूँ वैस हमाद, हम अमेरिका में मैच खेल रहे थे, तो उसमें हमने 2nd पोजीशन हासिल की। तो पहला मैच हम हारे थे, 3-0 से हम हारे थे, और कोस्टिका की टीम थी। और मैं वहाँ का क्या बताऊँ कि मकसद बहुत टफ मैच होते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी टीमें होती हैं, और वो बिल्कुल हमारे लेवल का खेलती है क्योंकि वो नीचे खेलते हैं। यूरोप में ऐसा होता है कि फुटबॉल को ऊपर से खेला जाता है, तो वो पहला मैच हमारे हिसाब में नहीं आया, तो समझ नहीं आया, थोड़ा हम सब कंफ्यूज थे। और दूसरी बात, तो 3 इंच की वहाँ ग्रास थी, ग्रास के हिसाब से भी वहाँ खेलना पड़ता है, तो स्लो बॉल जा रही है, ग्रास पे स्लो जाती है ना, पासिंग का मसला होता है। तो वहाँ पर हमने यूरोप का थोड़ा सा चीज़ ली कि ऊपर से हाई करके खेलेंगे। तो हाई के टाइम पे हम्माद को क्रॉस आया, और हम्माद ने बगैर पीछे देखे उस क्रॉस को जो है ना हेड से ही बैक पे उसने पास किया। नईम गुजर रहा था और नईम ने वो गेंद को लिया। अच्छा। और उसका क्रॉस इतना अच्छा था, वो हमारा पहला गोल हुआ था अमेरिका के अंदर, और जिससे हमें एक तब्दीली हासिल, कॉन्फिडेंस मिला, और फिर हमने आगे बढ़ने का आया। फिर दोबारा नईम ने एक और गोल किया था उस पर। तो मैं कह नहीं सकता कि वो किस तरीके से, हमारी तो सोच से बाहर था, माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छा मेहनत की, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। बेशक, बिल्कुल। तो एक जुमला है ना कि मौका सबको मिलता है, मगर आगे वही बढ़ता है जो मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सिंपल सा है ये, मगर बड़ा ज़बरदस्त है ये। और आखिर में कोई ऐसी अनफॉरगेटेबल स्टोरी जो आपको भी मतलब जो हमें भी इंस्पायर करे आपकी? जब मैं स्ट्रीट पे था तो मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था सलमान, वो भी इस टीम का हिस्सा है। अच्छा। और वो और मैं एक
आपने ताश कम्प्लेक्स के बारे में सुना है, तो हम उसके बाहर, पहले वो पूरा बना हुआ नहीं था, तो बाहर की साइड पे वहाँ जो पानी का पंप लगा हुआ था, तो वहाँ एक टंकी की नुमा बनी हुई थी। हम वहाँ कपड़े धोते थे। एक वक्त ऐसा था कि हम वहाँ बैठते, नहाते, कपड़े धोते थे इस तरीके से। और कितनी एज थी आपकी? तकरीबन 6-7 साल की उम्र होगी। तो हम उस वक्त आपस में इस तरह से रहते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब हम पाकिस्तान टूर से वापस गए, आई एम समबडी कैंपेन से वापस आए, तो HBL की तरफ से हमारी एक शूट थी। तो उसमें HBL ने हमें उसी होटल में ठहराया। अच्छा। और उस होटल के अंदर हम थे, उस होटल में हम बैठे थे, जिस होटल के बाहर कपड़े धोते थे। और ये मेरे लिए बहुत अलग बात है। तो एकदम मैं और सलमान एक साथ बोले कि यार मकसद हम क्या कह सकते हैं इस बारे में कि जिसके बाहर हम कपड़े धोते थे, बैठते थे, आज हम उसी में बैठे हुए और इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं और वहीं पर ही खाना खा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत हमारी फीलिंग चेंज हो गई। एक्सीलेंट स्टोरी। सो इससे वो HBL की लाइन जो है, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL है। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक एंड वेल डन गाइस। खैर, आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना था, ऑडियंस के पास जाने से पहले आप पूछ लो जो मेरे से पूछना है। आप लोग जब क्रिकेट की ट्रेनिंग करते हो, कि मैंने सुना है वहाँ भी फुटबॉल की ट्रेनिंग की जाती है? नहीं, फुटबॉल वार्म अप के लिए करते थे पाकिस्तान टीम में, अब भी करते हैं, मगर बहुत निकम्मे फुटबॉल खिलाड़ी होते थे हम। बिकॉज फुटबॉल एक डिफरेंट स्पोर्ट है। तो मैं नहीं था खेलता, बिकॉज ये आपस में लड़ते थे फुटबॉल के, मारते थे एक दूसरे को मारते थे, स्पाइक्स पहन के लड़ पड़ते थे। अच्छा। मैंने कहा ये क्या वार्म अप है? तो मैं गोलकीपर बनता था, अकलमंद था मैं। अच्छा। हाँ, मैं अकलमंद था, गोलकीपर बनता था। तो अभी जब पाकिस्तान टीम कभी क्रिकेट की फुटबॉल खेले ना, लगता है कि ये कोई खेतों में मुर्गी भाग रही है। बिल्कुल समझ नहीं आती किसी को क्या हो रहा है। चलिए अब चलते हैं ऑडियंस के पास। हाँ। मेरा सवाल इनसे ये है कि ये जब यहाँ ब्राज़ील से वर्ल्ड कप जीत कर आए, तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग में किस तरीके से इजाफा हुआ, और इनको फ़ोन वगैरह आते थे लड़कियों के? तो क्या चेंजेस आए जब आप जीत के आए ब्राज़ील से, और कोई फ़ैन फॉलोइंग, कोई लड़कियां वड़कियां फ़ोन आए इधर उधर, ये पूछ रहे हैं वो तो हर लड़के को आती रहती है। अच्छा यार। जी, क्यों देखें, एक बात है, मैं एक बात बताता चलूं। हाँ। अल्लाह ताला से हम लोगों को इतना नाम मिला, तो हमारे मोहल्ले में रिस्पेक्ट भी बहुत की जाती है और फैन भी बहुत हैं। और माशाल्लाह से मैं जिस सेंटर में जाता हूँ, माशाल्लाह से वहाँ की लड़कियाँ ऑटोग्राफ और नंबर्स के ऑफर भी करती है। तो ये माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। थैंक यू। चलिए एक और सवाल पूछते हैं, आंसर भी अच्छा दिया आप। आप अपना तीसरा वर्ल्ड कप कब खेलोगे? हमारा अगला वर्ल्ड कप 2018 में रशिया में खेला जाएगा, जिसमें अब हम नहीं, हमारे जैसे और बच्चे हैं जिनको ये मौका मिलेगा। स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप अंडर-16 के लिए, और जाहिर सी बात है हर 4 साल बाद हमारी एज चेंज हो जाएगी, तो इसलिए अब हर बार एक नए बच्चे को मौका मिलेगा। अवैस, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया महर आपका भी शो पे आने का, और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया में, फ्यूचर में आप ऐसे ही करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जाने से पहले एक तस्वीर मेरे साथ। Putting Pakistani women on International Olympics map. Being one of the first international female swimmers from Pakistan, Kiran Khan has done it all against the tide. With numerous gold medals in national and international competitions, she was named the Golden Girl. With her talent, ability and personality, she is making her mark internationally and making Pakistan proud with each event. Today, let's welcome the future of Pakistan, our female swimming hero, Kiran Khan. Kiran, welcome to the show. Thank you so much. It's an honor to have you on the show. It's an honor for me to sit Thank in you. front of you. Thank you. अच्छा, what is the story behind the Golden Girl? 348 gold medals, national 348, इतने तो रन नहीं होते यार। 7 international gold, Yes. 22 silver international, 22 bronze. Unbelievable. Thank you so much. Really proud of you. Thank you. So what is the story behind the Golden Girl?
The story behind Golden Girl is that I started off swimming at the age of 3. Then my father taught me the professional swimming, जो athlete swimming होती है. By the age of 7, I knew swimming. अच्छा. मुझे स्विमिंग करनी आ गई. मैं इंटर स्कूल्स, इंटर क्लब्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. लेकिन कभी पता नहीं चलता था कि जीत रही हूँ, हार रही हूँ. उस वक्त इतना मेरा खास एक्सपोजर नहीं था मेरा. Right, okay. फिर मेरे फादर ने सोचा कि इसके अंदर एक टैलेंट है, वाई नॉट इज पुट हर इनटू स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग. फिर उन्होंने मुझे 3 साल किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया. अच्छा. और डायरेक्ट डेब्यू हुआ मेरा 2001 28 नेशनल गेम्स में. अच्छा. बाय द मैं थे आई थिंक 10 years and 6 months. आई वाज 10 years and 6 months. Wow. और फिर मैंने 28 नेशनल गेम्स में 7 गोल्ड्स, 3 At सिल्वर, the age of 10 and a half. 10 and a half. Wow. 7 goals, 3 silver and 3 bronze with 7 national records. तो जब हमारी क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी तो बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे सेड दैट शी इज़ द यंगेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर and of the new millennium. Yeah. And they gave me the title of Golden Girl. You are a golden girl, that's for sure. So ये बताइए कि स्विमिंग क्यों पाकिस्तान में स्पेशली हमारे यहाँ तो स्विमिंग पूल्स तो होते नहीं है. मुझे याद है जब मैंने स्विमिंग की थी तो मैं इचरे की नहर से पुल से छलांगे मारता था और नहर के साथ साथ जाते थे. स्विमिंग पूल थे ही नहीं कोई आम एवरेज यंगस्टर के लिए. स्विमिंग की तरफ डैड ने मोटिवेट किया. माई डैड वॉज अ फॉर्मर नेशनल चैम्पियन एज वेल. तो हम सब बच्चों का उनका ये आई थिंक मोटो था कि सब बच्चों को स्विमिंग आए, नॉट टुवर्ड्स के कम्पिटिटिव स्विमर्स बने या लीड स्विमर्स बने. पहले मेरा भाई स्विमिंग करता था, ही वाज अ कम्पिटिटिव स्विमर. देन ही लुक अप टू मी. उन्होंने फिर मुझे एक किस्म का प्रोड्यूस किया एंड देन ही मेड मी अ स्विमर एंड देन द जर्नी वेंट ऑन एंड ऑन. तो आपको जैसे जब इंटरनेशनल आपने पहली दफा कब जैसे ही मैंने 28 नेशनल गेम्स खत्म की, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इन द पाकिस्तान टीम. अमेजिंगली वो मेरे लिए 10 and a half में. और मैंने उसी नेशनल टीम में आप पिक हो गए. नेशनल टीम, पाकिस्तान की जो नेशनल टीम होती है. उसके बाद सितंबर में, मार्च में मैंने नेशनल गेम्स किए. सितंबर में मैंने पाकिस्तान को 3rd वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में रिप्रेजेंट किया. वहाँ पे ऑलमोस्ट आती हैं 57 मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक स्टेट्स जो है हमारी वर्ल्ड की. और मैंने पाकिस्तान को मेरे ख्याल से वुमेन हिस्ट्री में पाकिस्तान को पहले 2 गोल्ड मेडल्स मैंने वहाँ पे पाकिस्तान को जीत के दिए बाय द एज ऑफ ऑलमोस्ट 11. बड़ी इंस्पिरेशन है आप तो. अब आपकी रूटीन क्या होती है डेली से? कंपटीशन है आपका 1 महीने में, कितना अरसा चाहिए आपको ट्रेनिंग का फॉर अ बिग कंपटीशन? फॉर अ बिग कंपटीशन आई नीड अबाउट 200 days. 200 days. लेकिन जो मिनिमम टाइम है दैट्स 90 days. 90 days में वी हैव अबाउट 4 to 3 सेशंस अ डे. स्विमिंग ट्रेनिंग, देन वेट ट्रेनिंग, देन स्विमिंग ट्रेनिंग अगेन. तो कितना टाइम लग जाता है आपका दिन में? आई थिंक 2.5 hours हमें लगते हैं. 2.5 to 3 hours स्विमिंग में लग जाते हैं. Then 2 hours of gym, 2 hours of specific gym, and then 3 hours again in the pool. Wow, excellent. So it's just eat, sleep, train, sleep. And swim. Yeah. Is there any message or advice आप देना चाहती हैं हमारी जो यंग लड़कियां हैं इस मुल्क की कि जो इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं? मैं सबको ये मैसेज देती हूँ कि डू प्ले स्पोर्ट्स. मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ स्विमिंग ही करें, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ स्पोर्ट. अगर आपका पैशन है स्विमिंग टुवर्ड्स प्लेइंग इन द वाटर, टुवर्ड्स बीइंग अ कॉम्पिटिटिव स्विमर, दैट्स अ वेरी टफ जॉब. आपको 24/7 पानी के अंदर होना पड़ता है. तो मैं उनको इसी तरह मैं मोटिवेट करती हूँ कि ट्राई योर बेस्ट टू बी इन योर स्पोर्ट्स. अब बी लॉयल टू योर स्पोर्ट्स, क्योंकि जब तक आप लॉयल नहीं ना होंगे अपनी स्पोर्ट्स के साथ या आप अपना टाइम नहीं देंगे तब तक आप उसमें कुछ अचीव नहीं कर सकते. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स मेरे हैं, आई एम स्टिल कम्पीटिंग एंड आई एम ट्राइंग टू बी इन द पाकिस्तान टीम अगैन. अच्छा. जिसके ट्रायल्स मेरे नेक्स्ट वीक हैं और इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस के ट्रायल्स बहुत मुश्किल होते हैं. ट्रायल्स को पास करना ही सबसे मुश्किल चीज़ है. अच्छा. क्योंकि न्यू टैलेंट अच्छा आता है, क्योंकि न्यू एंड ओल्ड मिक्स हो जाता है. और फिर आपकी जो होता है एक एज होती है जिसमें आपका पीक पीरियड होता है, एक एज आपकी होती है आप अपने एक्सपीरियंस के साथ जीतते हो. तो आई थिंक अब मैं एक ऐसी एज में हूँ जहाँ पे मुझे मेरा एक्सपीरियंस भी चाहिए और मेरा पीक टाइम भी है. तो जो यंग टैलेंट होता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है एज कम्पेयर टू अस, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है. यंग हो यार. नहीं, मुझे नहीं ना महसूस होता. इट्स बिन 15 years that I'm into this. I can imagine, yeah. तो इसलिए ज़रा टफ होता है क्योंकि जो यंग टैलेंट होता है वो एक स्पेसिफिक रेस के लिए कम्पीट करता है और हम लोग होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से. सो वी नो कि हमारा एरिया ऑफ वर्क क्या है कि हम कितना पाकिस्तान को जाके बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कितने इवेंट्स में हम पाकिस्तान के लिए मेडल्स ला सकते हैं. इंडिया गए तो क्या रिस्पांस अच्छा मिला कि प्रेशर ज़्यादा पड़ा कि क्या हुआ? स्टोरी बताइए.
जब फर्स्ट टाइम इंडिया गई थी आई फेल्ट लाइक अ सुपरस्टार। ओके, हमारे यू आर अ सुपरस्टार। नहीं उधर तो तब तो नहीं थी ना। अच्छा। तो मैं हम लोग जो हमारी वैन थी हम उसमें बैठे हुए हैं और यहाँ से पुलिस वाले जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जा रहा हो, स्विमिंग पूल जा रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी के साथ कि लोग परेशान होते थे कि 5 लड़कियाँ एक गाड़ी में से निकलती हैं, इनके साथ इतनी सिक्योरिटी होती है, बिकॉज वे मुस्लिम्स और पाकिस्तानी है, तो ऑब्वियस बात इंडिया में आपको सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू हो जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी इंडिया में रेस के लिए मैं स्टार्टिंग ब्लॉक के पास खड़ी हुई थी एंड दे अनाउंस द नेम दैट किरण खान फ्रॉम पाकिस्तान, लेन नंबर 4 और 5 में थी, तो मुझे पता है आप जब एक रेस के लिए जाते हो यू आर जस्ट बीइंग सो सीरियस, फोकस्ड और गुस्सा आपके अंदर होता है ताकि योर बॉडी कीप्स ऑन रिस्पॉन्डिंग यू वेल। एकदम से मुझे आवाज़ आई, शादी करोगी मुझसे? एक बड़ी ऊंची आवाज़ थी, लाइक इट वाज लाइक 200 पीपल सिटिंग देयर, एकदम से आवाज़ है। मैंने यूँ ऊपर देखा, इधर देखा, मैंने इग्नोर किया और मैं अंदर सोच रही, मैं कहा यार प्लीज़ आप डिस्ट्रैक्ट ना करना। फिर एक और आवाज़ आई, मौलवी बुलाऊंगे पंडित? फिर मैंने दोबारा घूम के देखा कि आई कहाँ से है आवाज़। अच्छा। फिर एक और आवाज़ आई बड़ी ऊंची, तू है मेरी किरण, क्योंकि नाम जाहिर बात ऑडियंस में नाम दिया वो मेरे फिर मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा आई नीड अ मिनट। अच्छा, बिकॉज यू कैन डू दैट, डिस्ट्रैक्ट हो तो, बिकॉज जब तक कंप्लीट साइलेंस ना हो तब तक वो स्टार्ट नहीं देते, बिकॉज वी हैव टू हियर द बीप, तो तब तक वो स्टार्ट नहीं देता। और जब एक स्विमर हाथ खड़ा कर दे कि आई एम गेटिंग डिस्टर्ब बाय द ऑडियंस, दैट यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा अच्छा, सो दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। सो जनरली ओवरऑल कैसा रिएक्शन था? हैदराबाद गए थे? हैदराबाद के कैसा रिएक्शन था इंडिया में जाने का और लोगों का? I think it was quite well. बहुत अच्छा. It's a very nice place to visit. It's a beautiful city. Very historic. Hospitality बहुत अच्छी थी इंडिया की. And they've been very sweet to us. तो स्विमिंग के अलावा कौन सी स्पोर्ट्स को देखना या खेलना एंजॉय करते हो आप? I prefer watching boxing. Just watching boxing. अच्छा. And I love playing golf and cycling and badminton. तो गोल्फ खेलते हो? जी. क्या हैंडीकैप है आपका? अभी तो मैं हैंडीकैप ही हूँ. फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके जिंदगी में? क्या करना चाहती हैं इतने मेडल्स के बाद? फ्यूचर प्लान ये है कि आई एम स्टिल competing and I want to compete as much as I can. जब तक हो सकता है. स्विमर्स एज है, स्विमर की वैसे एज 41 तक होती है. Some people are 41, 45, they're still competing and some people leave at the age of 25 or 30. वो डिपेंड करता है कि आप कितना अपना को यूज कर चाहते हैं. दुनिया में किसी स्विमर ने इंस्पायर किया जिसको जो कहते हैं यार आइडियल है मेरा, मैंने ऐसे होना है? एक एन थॉर्प, माइकल फेल्प्स एंड एन सारा थॉर्प का प्राइस. निकनेम टॉर्पीडो था. Yes. Because he was so quick. He was huge. He उसका looked. शू साइज भी कोई 14 था, I believe. Yes. Yes. वो ऐसा लगता था जैसे एक शार्क बड़ी सी वेल स्विमिंग कर रही है एंड पीपल आई थिंक उसको सिर्फ देखते थे और जब उसकी रेस खत्म हुई सब लोग वहाँ से निकल जाते थे और बाकी सब लोग देखे थे, ये हमें नहीं देखते. हमारे यहाँ स्विमिंग का फ्यूचर है लड़कियों में आपके ख्याल में? स्विमिंग का फ्यूचर है. इन पास्ट 2 years आई हैव सीन के बहुत सारे बच्चे अब स्विमिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं. अच्छा. तो स्विमर्स बहुत निकल रहे हैं. जो स्कूल्स हैं आई थिंक दे आर आल्सो मोटिवेटिंग किड्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स. चलिए किरण, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अब 1-2 क्वेश्चन हमारे ऑडियंस से पूछते हैं. जी, आपका नाम? मेरा नाम वकास है, वकास अहमद. मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी की प्लानिंग है फ्यूचर में कोई? गुड वन. I will cross the bridge when I reach it. कब ब्रिज क्रॉस करोगी? I don't know. आप पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड? I think मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. I'm more focused on, क्योंकि अभी मैं कर भी लूँ शादी तो I will still continue my swimming, but अभी मेरा कोई ऐसा such plan नहीं है. We'll see if I find somebody. So bad luck buddy. He must know swimming. चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं. Which kind of technique you use in backflip? Because it's very difficult. I know being a swimmer, it's really takes hard to do it. टेक्निक ये है कि एक आपके जो कोर है, आपकी एब्स हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपको स्पिन करने में. जो स्पिन करके जो आपकी लेग्स होती हैं वो एक प्रॉपर मूवमेंट पे आके वॉल पे हिट करती हैं एंड देन यू हैव टू जंप ऑफ. जैसे आप ज़मीन से ऊपर जंप मारते हैं देन यू हैव टू जंप ऑफ. लेकिन आपके पाँव बिल्कुल पैरेलल आने चाहिए. यूँ ज़रा सब यूं हुआ या टेढ़े लगे तो वहीं पे आपको पाँव में इंजरी हो जाएगी, आपका पाँव मुड़ जाएगा. वेरी डिफिकल्ट. बेटा नेक्स्ट टाइम मुफ्त में एडवाइस दिए. चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका कोई क्रेजी मेल फैन है? अभी एक बन जाएंगे इधर. आई डू हैव क्रेजी मेल. मेरे पास एक है, आई थिंक उनका नाम समथिंग जितोई है
और वो मुझे हमेशा प्लीज़ मैसेज मी मेरे ख्याल से मेरे फ़ैन पेज पे, मेरे हर जगह पे वो एक क्रेज़ी फ़ैन है। मैं उनको ब्लॉक भी नहीं कर सकती क्योंकि वो ही कीप्स ऑन मेकिंग अकाउंट्स एंड ही कीप्स ऑन कमिंग बैक टू मी। इतना टाइम है उसके पास? इतना टाइम है उसके पास। व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स कर रहे जो तो ही ही इज़ वन क्रेज़ी फ़ैन आई हैव। किरण, एक जुमला बोलूंगा, आपने आंसर देना है। सोफा। इट्स फनी। हम एक इंटरनेशनल टूर पे जा रहे थे। वी वर फ्लाइंग फ्रॉम एमिरेट्स। और मैंने अपनी सीट खुद अपग्रेड कराई थी टू सोफ़ा, और सब लोग, पूरा कंटिजेंट वाज सिटिंग इन इकोनॉमी क्लास बिकॉज वी ऑलवेज ट्रैवल इकोनॉमी, और मेरे पास इतने वो कार्ड्स में माइलेज थे कि आई कुड अपग्रेड इट टू माई सोफ़ा क्लास, माई बिजनेस क्लास। सो आई वाज ट्रैवलिंग टू बिजनेस क्लास एंड वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी हमारी टीम की, मतलब हमारी पाकिस्तान टीम की, नॉट फ्रॉम स्विमिंग। तो उन्होंने कहा कि वो क्यों आगे सोफे पे बैठी हुई है, सोफे पे। और मैं यूँ पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा मैं कौन से सोफे पे बैठी हुई हूँ। मैं उसको वो कॉन्स्टेंटली वो पर्दों के बीच में वो सेक्शन था उधर खड़ी हुई है, वो किरण क्यों आगे सोफ़ों पे बैठी हुई है। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद, आपको पता है आपको अब 18 आवर्स की फ़्लाइट हो तो आपसे बैठा नहीं जाता, तो गपशप लगाने के लिए मैं पीछे आई तो मैं देखा कि ये 4 रोज़ खाली हैं और वो 8 लोग किधर हैं। मैं थोड़ा सा आगे गई तो मैं अपनी टीम से इंटरेक्ट कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने एक हाथ यूँ करके बाहर आता हुआ देखा, लिटरली यूँ करके बाहर आया। मैं आगे जाके देखी तो सीट खाली और सीट के नीचे एक लड़की लेटी हुई। अच्छा। फिर मैं पीछे गई, उधर भी एक लड़की लेटी हुई। मैंने कहा यार सोफे के ऊपर भी सो सकते हैं या सीट के ऊपर भी सो सकते हैं। वो आर्म रेस्ट ऊपर करके वो नीचे लेटी हुई थी, 4 पूरी पीछे। और ओलंपिक 2 मैं ओलंपिक हो गई हूँ। मतलब अब ये मैं आपको क्यों बताऊँ? नहीं, आपसे सवाल पूछा, बताना तो पड़ेगा आपको। ये था कि एक हमारे कोच थे वहाँ पे, ही वाज आई थिंक फ्रॉम हॉकी और समथिंग और रेसलिंग। वो सेकंड टाइम ओलंपिक्स में आए थे। फर्स्ट टाइम वो आए थे एज अ प्लेयर, सेकंड टाइम वो आए थे एज अ कोच। अच्छा। तो वो लेजोन ऑफिसर को ये समझा रहा था कि दिस माई ओलंपिक 2, दिस इज माई ओलंपिक 2, मतलब जो उसकी इंग्लिश थी जी। और मैं खड़ी उसको देख रही तो वो कह रही थी कि व्हाट इज़ ही सेइंग। फिर मैंने उनसे पूछा उर्दू में कि मैंने कहा आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं। कहते हैं मैं 2 दफ़ा ओलंपिक हो गया हूँ। मैंने कहा अच्छा सब्र करें। फिर मैंने उसे बताया कि ही इज़ ट्राइंग टू से दैट दिस इज़ हिज सेकंड ओलंपिक्स टू बी अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। उसने कहा ओके। फिर दूसरी एक लड़की आई, क्योंकि ओलंपिक्स में 2 ही लड़कियां गई थी, एक मैं थी और एक मेरे साथ एथलेटिक्स की थी। उसने कहा मैं भी ओलंपिक हो गई हूँ। और मैं उसको देख रही, मैंने कहा यार ओलंपियन वो जहाँ जा रही मैं ओलंपिक, मी ओलंपिक। It's quite funny. Yeah, किरण, thank you very much. बड़ा एंजॉय किया मैंने आपकी स्टोरी सुन के, और मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि आगे जाके आप और भी इस मुल्क के लिए मेडल्स लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपने एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा। चलो, गुड लक, ऑल द बेस्ट। मगर जाने से पहले एक तस्वीर मेरे साथ। So these were our guests for today, and it was a pleasure to have them on the show. Thank you, viewers and audience. So we'll see you next week with another sportsman. Take care and keep watching HBL presents The Sportsman. Khuda Hafiz.